Hallelujah. I just want to tell you from the bottom of my heart that I don't deserve this honor. मैं अपने दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ कि मैं इस आदर के योग्य नहीं हूँ। This ministry is not about me. ये सेवकाई मेरे बारे में नहीं है, It's about each one of you. ये आप में से हर एक के बारे में है। Each one of you is a hero in this ministry. आप में से हर कोई एक हीरो है इस मिनिस्ट्री में। You know, I'm not a fool. मैं मूर्ख नहीं हूँ। I know all of you have not come because of me. मैं जानता हूँ आप सब लोग मेरी वजह से नहीं आए हो। It's only the Lord who has drawn you all. केवल प्रभु है जो आपको यहाँ खींच के लाया है। I have a word and I want to share that. मेरे पास वचन है और मैं आपको वो देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले, can you work on the reverb, please? A few days ago, You know, I was just talking to the Lord मैं प्रभु से बात कर रहा था and I was just telling the Lord, I said, Lord, I'm not a fool. और मैं कह रहा था प्रभु मैं मूर्ख नहीं हूँ। I would be the greatest fool if I start thinking that all this is happening because of me. मैं सबसे बड़ा मूर्ख होऊंगा अगर मैं ये समझ बैठा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। When you see this ministry, जब आप इस सेवकाई को when देखते I हैं, see this ministry, जब मैं इस सेवकाई को देखता हूँ, all that I see is the grace of God. This is just the grace of God. ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। This ministry is not built by any man's charisma. ये सेवकाई किसी मनुष्य के करिश्मा से नहीं बनाई गई, This ministry is not built by any man's hard work. किसी इंसान की मेहनत से नहीं बनी, It's just pure grace of God. ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से बनी है। And you know, when I was listening to Drishti's testimony today, जब मैं आज दृष्टि की गवाही सुन रहा था, I was thinking, Lord, these testimonies are the medals of this ministry. मैं कह रहा था प्रभु ये जो गवाहियां हैं ये इस सेवकाई के लिए मेडल हैं। This is our real reward. ये हमारा असली प्रतिफल है When we see the Lord transforming lives. जब हम देखते हैं परमेश्वर जीवनों को बदल रहा है। And I want to request one thing to all of my family. और मैं हमारे सारे परिवार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। Okay? Will you obey? मानेंगे? Please don't touch my feet. मेरे पाँव मत छुआ करो। I know you love me, you honor me. मैं जानता हूँ मुझसे प्यार करते हो, मेरा आदर करते हो। You pray for me. मेरे लिए प्रार्थना Pray for करो। our family. Pray for the leaders. हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, लीडर्स के लिए प्रार्थना करो That till our last breath we'll faithfully serve the Lord. कि अपनी आखिरी सांस तक हम उसकी सेवा विश्वास योग्यता से कर पाएं। We need your prayers. हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है।
Come on, let's give the greatest honor and praise to Lord Jesus. सबसे महान आदर स्तुति हम प्रभु यीशु मसीह को दें, He is worthy. He alone is worthy. केवल वो ही योग्य है, He alone is worthy. वो अकेला है जो योग्य है। See, I had told them not to do anything on stage. मैंने इनसे कहा था स्टेज पे कुछ मत करना। You know, now my makeup is all messed up. I am kidding, I don't wear makeup. मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मेकअप नहीं करता हूँ, Just a little bit of mascara. बस थोड़ा मस्कारा। It's good to laugh in the house of the Lord. Amen. अच्छा है परमेश्वर के घर में हंसना। And this is my prayer ये मेरी प्रार्थना that है each and every member of FOLJ family will fulfill their race in Jesus' name. कि एफएलजे परिवार का हर एक सदस्य अपने जीवन की दौड़ को पूरा करेगा यीशु के नाम में। Every member of FOLJ will finish their race well in the name of Jesus. एफएलजे का हर एक सदस्य अपनी रेस को अच्छे से दौड़ेगा, अच्छे से पूरा करेगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Thank you so much. I love you all so much. मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। And this is my desire. You know, मुझे पहले नहीं पता था ये, पर जब आप एक मिनिस्ट्री लीड करते हो तो enemy brings a lot of attacks, different kind of attacks. I did not know this, but when you're leading a ministry, दुश्मन अलग-अलग तरह के अटैक्स लेके आता है। And many times he also uses your own brothers and sisters to accuse you, to attack you, to spread rumors. कई बार वो आपके खुद के भाई बहनों का इस्तेमाल करता है आप पर हमला करने के लिए, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए। मैं और आज जब दृष्टि की गवाही चल रही थी, मैं कहता प्रभु, अगर एक भी ऐसी जिंदगी बदलती है ना, तो ये वर्थ इट है कि लोग आपके बारे में उल्टा बोले, आपके बारे में अफवाह फैलाएं। When I was seeing this testimony, I was saying, Lord, even one such testimony is worth all the trouble of people spreading rumors about you, spreading lies about you. Amen. ये गवाहियां, ये पिता का एक स्टैंप है कि मैं इस घर में मौजूद हूं। These testimonies are a stamp of the Father that He is in this house. क्योंकि ये कोई इंसान नहीं कर सकता। Because no man can do this. यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा जो उस पर नहीं भरोसा करते थे, जो लोग कहते थे ये दुष्ट आत्मा से है, जो कहते थे ये झूठा है, वो कहता था, यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों को नहीं मानते तो उन कामों को तो देखो जो पिता कर रहा है। Jesus used to reply to those Pharisees who would say that he is demon possessed, he is doing these by devil. Jesus said, if you don't believe in my words, at least believe in my works. Okay, so please sit down without wasting any time. Amen. और बहुत जल्दी हम लोग अपनी जगह में होंगे। And very soon we will be in our own place. Amen. आप लोग जानते हैं हम कैसे समयों में जी रहे हैं। You know the kind of times we are living in. If you open news, any news, अगर आप कोई भी खबर खोलेंगे, all that you will hear is people getting murdered, they're getting killed, accidents, crashes, यही सुनने में मिलेगा, sicknesses. किसी की हत्या हो गई, कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। और होता क्या है, जब आप ऐसी
एक जगह में रहते हो जहां आम ये चीजें होती रहती हैं, तो लोग ये विश्वास करने लग जाते हैं कि ये इससे कोई बच नहीं सकता, ये जिसके साथ होना है वो होगा। आप बहुत लोगों को सुनोगे कहते हुए ये जिसके साथ लिखा है होना है वो होगा, मगर ये बिब्लिकल नहीं है। And when you start to hear all these things, when you're surrounded by such news, many people start to believe this lie that it will happen to whomsoever it has to happen. It will happen to those for whom it is already written. But do not believe this is हम not true. लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, For us, the people of God, हम लोगों के लिए वचन कहता है तुम दुनिया में तो हो मगर दुनिया के नहीं हो। for us, the word says, you are in this world, but you are not of this world. आमीन। आपको याद है साल के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीजें होंगी, आप सुनोगे, मगर हम आत्मिक गोशेन में हैं। In the beginning of this year, I had told you that all these things will happen, you will hear of them, but we are in the spiritual Goshen. ओके, सो आज जो मैसेज है मैं चाहता हूं आप ध्यान धर के सुने। The message that I have today, I want you to hear intently. ओके, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्योंकि टीचिंग जरूरी नहीं है वो एक्साइटिंग हो, It's not important that teaching would be मेरा exciting. गोल आपको एक्साइट करना नहीं है। My goal is not to excite you. मेरा आज गोल ये है कि वो वचन का बीज आपके हृदय में आज प्रवेश करे। My goal is that that seed of God's word would enter into your heart today. कि आप और आपकी पुश्तें उसका फल खाएं यीशु के नाम में। Amen. So that you and your generations will eat the fruit of this seed in Jesus' name. आपने देखा होगा किसी के दादा ने अमरूद का पेड़ लगाया, You would have seen somebody's grandfather sowed a guava seed. A guava दादा ने tree. अमरूद खाए, The grandfather ate those बेटे ने fruits. अमरूद खाए, Then his अब son नाती पोते भी अमरूद खा रहे Now the हैं, grandchildren- नाती पोतों के बच्चे भी अमरूद and खाएंगे। the children of the grandchildren will also. वो पीढ़ी उस फल को खा पाई जो एक नाशवान बीज बोया गया। Generations ate from a seed that was carnal, that was to be destroyed. उसका वचन कहता है ये बीज अविनाशी बीज है। His word says that his word is the indestructible seed. अगर ये बीज आपके हृदय में चला गया और फल फलने लग गया, आपकी पुश्तें इसका फल खाएंगी यीशु के नाम में। If this seed goes into your heart and becomes a tree, your generations will eat the fruit of it in Jesus' name. आपको ध्यान धरकर जो आप आज सुन रहे हो आपको समझना है, मैं केवल एक सरमन सुनने नहीं आया हूं। You have to understand, I have not come here to hear a sermon, but you have to. क्योंकि जो वचन मैं आज सुनूंगा वो मेरा जिंदगी तो बदलेगा ही मगर मेरी पुश्तों को भी बदल देगा यीशु के नाम में। Because the word that I'm going to hear today will change my life, but it will also change my generation's life. आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में इनहेरिटेंस या मिरास आप पा लेते हो विश्वास से, वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी है। Because the inheritance that you obtain, you receive in the kingdom is not just for you, but also for your children and their children and their children after them. क्योंकि वचन में लिखा है आशीष इतनी शक्तिशाली है कि एक आशीष 1000 पीढ़ी तक आगे जाती है। Because the Bible says a blessing is so powerful that it goes down to 1,000 generations. सो अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं So if I तो look at जिस प्रतिज्ञा को मैं पा लूंगा मैंने अपनी 1000 पीढ़ियों को बदल दिया यीशु के नाम में। So if I look at it from the word, any promise that I have obtained, my 1,000 generations have been transformed by them. ओके, इसीलिए अगर आप कलीसिया में आए हो, आपका नंबर 1 मोटिव जो है वो है खुदावन मैं तेरे घर में आया हूं जहां तेरा बीज चितरा जाता है, मैं वो भूमि अच्छी भूमि बनूं कि जब ये बीज मेरे कान के द्वारा होते हुए मेरे हृदय में प्रवेश करे तो वो 100 गुना फल लेकर आए। So when you have come to his house today, your number one aim, your number one goal is to receive that word which is being spread here, that seed would go from your ear into your heart. आमीन। और मैं ये आपको बता दूं कि एक प्रतिज्ञा इतनी शक्तिशाली है कि आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। And I can tell you one promise is so powerful, it can change your entire story. यही शैतान चाहता है
क्योंकि आप हर संडे आते हैं, आप सुनते हैं, लोग YouTube में सुनते हैं, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, लोग नम हो जाते हैं जब वचन का प्रचार होता है, क्योंकि वो एक आदत हो जाता है. It becomes a cliche. When you hear a truth again and again, it becomes a cliche. So you don't hear it as attentively as you would, as you did when you heard it the first time. This is what the devil wants. People become numb, and when they hear the truth, वो उतना ध्यान से उस सत्य को फिर नहीं सुनते जो बार बार वो सुन रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार सुना था तब ध्यान से सुना, फिर उसको हल्का सुनने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं. तो आज उस परमेश्वर का वचन ऐसे सुनना जैसे पहली बार सुन रहे हो. So today, hear the word of the Lord like you're hearing it for the first time. Amen. So आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो दीर्घायु की वाचा है. Today, I want to teach you about this covenant of long life. So चलिए वचन में चलते हैं. Let's go into the word. दूसरा पत्रस 2 Peter 1, 3 and 4. दूसरा पत्रस 1 उसका 3 और 4. How many are listeners of the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं? Active listeners. ध्यान धरकर सुनने वाले. Show me your hand. बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अच्छी भूमि बना. जब तेरे वचन का बीज मेरे हृदय रूपी भूमि में पड़ता है तो वो 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम में. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है. मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर वचन को देखो, वचन को सुनो. इसमें क्या लिखा है? जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसने हमें दिया है, दे दिया है. Whatever pertains to life and godliness, He has given to us. अधिकतर मसीह आज भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे करके मैं उस परमेश्वर को मनाऊं. प्रभु तू कितने में मानेगा? क्या 3 दिन के उपवास में मानेगा, या 10 दिन के उपवास में मानेगा, या 40 दिन के उपवास में मानेगा? Most Christians are trying to convince God. They are bargaining with Him. Lord, what can I do to make you convinced about this? 3 days fast would do. 40 days fast. What can I do? क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है परमेश्वर के पास सामर्थ तो है करने की, सब कुछ कर सकता है, बट मेरे लिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो माना नहीं है. तो मेरा काम अब क्या है? प्रार्थना में उसको मनाना है. Because so many believers believe this, that God has the power and the ability to do it, and He is doing it for others, but He is not convinced for me to do it for me. So my job is to convince Him somehow that He will. So अधिकतर मसीहों की जो प्रार्थना है ना, उनके प्रार्थना की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है कि ज्यादा जब मैं करूंगा प्रार्थना तो ज्यादा परमेश्वर से ले सकता हूं. So the foundation of most believers is that when I will do more prayer, when I will do more, then I will get more from God. मगर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, But when we look at the word of God, वचन में लिखा है जो कुछ भी आपके जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर ने मसीह में आपको पहले से दे दिया है. the word says whatsoever pertains to life and godliness, God has already given it to you in Christ. मगर क्या आपने वो सब ले लिया है? नहीं. हम सब बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे हमारा डील डॉल बढ़ रहा है वैसी वैसे उस मीरास का जो अधिकार है उसके ऊपर हम हल्के हल्के कब्जा कर रहे हैं. But what God has already given, have we all received it already? No. As we are growing in stature, in identity, we are grasping hold of the inheritance God has given to us in Christ. एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें. अब उसके बच्चे छोटे, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है. There's a big industrialist who has many businesses, many things going on, and he has 2 kids, one 2 years and one 5 years. यद्यपि ये जो उद्योगपति है इसके पास बहुत कुछ है. इसके पास
ऑफिसेज हैं, कार्स हैं, मगर वो जो बच्चे हैं ना, अभी उनको केवल क्या दिया जाएगा? खिलौने दिए जाएंगे. Even though this industrialist has many things, he has उसके दफ्तर हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, but these children will only be given toys right now. और उसने अपना विल बनाया, वसीयत बनाया और बोला मेरा जो सब कुछ है ना वो मेरे बच्चों का है. And he makes a will and writes, whatever belongs to me it belongs to my children. सो उस पिता ने कब दिया बच्चों को? जब वो मरेगा उस दिन, या जिस दिन उसने साइन करा वसीयत पे, उस दिन जो उसका था उसके बच्चों का हो गया. So when did the father give it to his children? The day he will die or the day he signed that it belongs to his children? जिस दिन उसने वसीयत लिखी, वो सब कुछ जो उसका है उसके बच्चों का हो गया. फिर भी बच्चे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उस मिरास पर अधिकारी नहीं हो सकते. The day he wrote the will, everything then belonged to the children, but because the children were little, they could not inherit what was given to them. So just because God has given you an inheritance that is glorious does not mean that you have possessed that inheritance. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी विरासत दी है जो महिमा से भरी हुई है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपने उसको पा लिया जो उसने दिया है आपको. अब सोचो, वो छोटे बच्चे हैं, वो पापा से कह रहे, पापा कब दोगे? पापा जो हमारा है हमें दो. वो कहेगा, बेटा सब दे दिया है तुम्हें, जो मेरा है सब तेरा है. Now imagine the little kids are begging and asking their father, when will you give to us? He says, whatever is mine is yours. I've given it to you. So now I'm teaching you a different kind of prayer. अब मैं आपको एक अलग तरीके की प्रार्थना सिखा रहा हूँ. Now when we pray, our motivation is not to convince God to give things to us. अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन परमेश्वर को राजी कराना, मनाना नहीं है कि वो But हमें कुछ दे. now when we pray, our focus is to grow up in maturity so that we can rule and reign with our Father. पर अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा फोकस इस बात पे है कि हम परिपक्व हो सके, बढ़ सके, मजबूत हो सके, ताकि अपने पिता के साथ हम राज्य कर पाएं. Okay? So अब मैं जल्दी से इसमें आता हूँ. He has given to us all things. How many things? उसने हमें सब वस्तुएं दे दी हैं. कितनी वस्तुएं? सब. But you don't know what all means in Hebrew. पर आपको ये नहीं पता कि सब का मतलब इब्रानी में क्या होता है. And you don't know what all means in Greek. और सब का जो मतलब यूनानी में क्या होता है अभी आपको पता नहीं है. All in Hebrew, are you ready? Means all. सब का जो अर्थ है इब्रानी में वो होता है सब. And all in Greek means all. और यूनानी में सब का अर्थ होता है सब. So if you already know that, why don't you believe it? तो अगर ये पहले से पता है तो मान क्यों नहीं लेते हो? He has already given you all things. उसने पहले ही आपको सारी चीजें दे दी हैं. But hear this. सुनिए, It is through the knowledge of Him. ये उसके ज्ञान की, उसकी पहचान के द्वारा होता है. Through means medium. Okay? इसका द्वारा मतलब एक So, माध्यम. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुनो. ये जो all है ना, इसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए. Healing, salvation, promotion, So in this all protection, is everything you will need. चंगाई, promotion, सुरक्षा, जो चाहिए, whatever you need. it's in this all. वो सब इस जो आपको में शामिल परमेश्वर से चाहिए इस all के अंदर है. whatsoever you need from God is already inside this. मगर ये आएगा, it will come through the medium. मीडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यम. जो माध्यम है जिसके द्वारा ये सब कुछ जो पहले से आपका है ये आपके पास आएगा, वो है through the knowledge of Him. Whatever is already been given to you in this all, it will come to you through the knowledge of Him. उसकी पहचान के द्वारा, उसके पहचान के ज्ञान के द्वारा. यानी प्रकाशन के द्वारा. ये प्रकाशन केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रकाशन के द्वारा. जब आप उस प्रकाशन को समझ लेंगे तो जो पहले से आपका है उस प्रकाशन के द्वारा आपके पास आएगा. So this revelation is not bookish knowledge, but this revelation reveals what is already given to you, and through that you receive it. Amen.
जैसे कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं कर्जों में था, जब मैं गरीबी में था, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए. When I did not have this knowledge and I was in debts, I was buried under things, I used to think this is God's will for me. सो यद्यपि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रख दिया था, Even though God had kept everything for me, मगर क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था, तो जो मेरा था वो मेरे पास नहीं आ रहा था. but because I did not have the knowledge of God, what was mine did not come to me. सो इससे पहले कि मैं परमेश्वर को मनाऊं उस चीज के लिए जो पहले से उसने मुझे दे दी है, मेरा अब मकसद क्या है कि मैं उस ज्ञान में बढ़ूं कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, और आज वो प्रतिज्ञाएं मेरे लिए क्या हैं. So even before I try to convince God to do something for me, I must first grow in the knowledge of who God is and what He has given to me, what He has done for me. ओ हालेलुया. मुझे बहुत मजा आ रहा है. मुझे नहीं पता आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा वचन I में. am really enjoying. I am enjoying the word. Amen. Amen. हमेशा याद रखना, जो आज, तो जब मैंने वचन पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मैंने कहा एक मिनट रुको. When I read the word that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. I said, hold मैंने on. कहा भैया, धार्मिक लोग तो कहते हैं क्योंकि तुम ये यहोवा की सेवा कर रहे हो, वो तुम्हें कमी से लेके जाएगा. I said, the religious people say that because you are serving God, He will take you through lack. मगर वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है. But the word is saying, because the Lord is my shepherd, I have no lack. तो क्या आने लगा? प्रकाशन आने लगा. So what started to come? Revelation started जब to come. प्रकाशन आने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है. When चरवाहे का revelation, मतलब, जो एक भेड़ होती है, जब उसके साथ चरवाहा होता है तो उसको टेंशन नहीं लेनी कि पानी कहाँ से मिलेगा, घास कहाँ पे मिलेगी, चरवाहा देगा सब कुछ. जिस दिन अपना पूरा आपने अवेयरनेस उस पर डाल दिया, मेरी जॉब मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, उस दिन क्या होगा? हल्के हल्के कमी घटी से यहोवा आपको निकाल कर बहुत आयत में ले जाने लग जाएगा. when revelation started to come that the Lord is my shepherd, what happens when a sheep is with the shepherd? The sheep doesn't have to worry about the grass or the water or protection. The shepherd will provide it all. When you have this revelation, this shepherd will lead you from lack into abundance gradually. Amen. So क्या चाहिए हमें आज? प्रकाशन चाहिए. So what do we need गिड़गिड़ाना today? नहीं है. क्या चाहिए? प्रकाशन चाहिए. We need revelation, not किस चीज का begging. प्रकाशन चाहिए? कि पहले से हमारा क्या है. What revelation do we need? What is already ours? What belongs to us मैंने आपको already? एक कहानी सुनाई है. एक परिवार था जो साउथ अफ्रीका से अमेरिका गया, या अमेरिका से साउथ, कहीं तो मैंने पढ़ा था, वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, या तो अमेरिका से साउथ अफ्रीका गए या साउथ अफ्रीका से अमेरिका गए, जहां भी गए वो फर्क नहीं पड़ता, कहानी आगे कुछ और है. I told you a story of a family traveling from South Africa to America or vice मुझे versa. मैसेज मत करना. Don't आपने message me. बोला था साउथ अफ्रीका से अमेरिका गए, नहीं, वो अमेरिका से साउथ अफ्रीका गए थे. Don't message me about the details later on. ठीक है, अब कहानी सुनो असली. Hear the story. उनके पास जो पैसा था, क्योंकि उस जगह अकाल पड़ा, Whatever money they had, because they थोड़ा had सा a पैसा drought, था, एक पिता माता, उनके 2-3 बच्चे, the parents and they had 2-3 kids. जो उनके पास पैसा था उससे उन्होंने 5 टिकट खरीद लिए. Whatever money they had, they bought 5 tickets with it. 3 दिन की जर्नी थी. It was a 3-day journey. और नाव में, बड़े जहाज में वो बैठ गए. And they were in a big ship. और जब खाना खाने का टाइम आता, बच्चे कहते पापा हमें भूख लग रही है. And when it was time to eat food, the kids would say, we are hungry. सो पिता कहता बेटा बस 3 दिन रुक जा. The father would say, just wait जब for मैं 3 इस more नए days. जगह जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, कुछ काम करूंगा, जो दिहाड़ी मिलेगी उससे तुम्हारे लिए सबसे पहले कुछ खाने को When लाऊं. I will go to this new place, I will get a job, earn some money. The first thing I will do is give you something to eat. तो वो बच्चे क्या करते कि वो जाके जहाँ पे उनका खाना था वहाँ शीशे के पास खड़े हो जाते और सबको खाना खाते हुए देखते. So those kids, they would go and stand outside the window of where they would have the buffet and they would look at people eating food.
और वो रोते हमारे पास खाने को नहीं है। And they would cry that we have no और food जब to eat. तीसरा दिन हुआ And when the तो third day कैप्टन came, जा रहा था डेक से the captain was passing और by ये the deck, व्यक्ति वहां खड़ा था and this man was standing there. और उसने कहा कि भाई सारे परिवार दिखते हैं, तू कहाँ है? And the captain said, I've seen all the families, I've never कौन seen कौन है you. तेरे परिवार में? सब मैं, Who all मेरी are in बीवी, your मेरे family? 3 बच्चे हैं। He said, me, my wife and 3 तो kids. बोला खाना खाने क्यों नहीं आता तू? He said, why don't you come and eat? तो उसने कहा कैप्टन साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है। He said, Captain, we have no money. उसने कहा बेवकूफ, तेरे टिकट में सारी मील्स इंक्लूडेड थी, नाश्ता लंच डिनर इंक्लूडेड था। He said, you fool, in your ticket all the meals were included, breakfast, lunch and dinner. कई आज मसीह हैं जो कहते हैं हमारे पाप तो क्षमा हो गए, मगर परमेश्वर आज चंगाई नहीं देता। There are some believers who say, oh, our sins are forgiven, but God does not give healing today. परमेश्वर को केवल एक चीज चाहिए, वो God- आपको केवल स्वर्ग ले जाना चाहता है। God just needs to do one thing. He needs to get you to मुझे heaven. आज तक ये समझ नहीं है कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये लोग, I still don't understand what Bible do they read? या धर्म ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। Or has religion blinded their eyes? कहते हैं मेरे को कई लोगों के मैसेज आते हैं, Some people आप send me जो है message. केवल चंगाई चंगाई करते हो। They say, you only talk about healing, healing. या मैंने अपने बाप से सीखा है, मेरा यीशु भी चंगाई चंगाई करता था। Yeah, I've learned it from my father. My Jesus also only spoke about healing, healing. Do you know there is never a time in the Bible, आंखें खोलो और बाइबल पढ़ो, एक समय ऐसा नहीं है जब यीशु कहीं गया और उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और लोगों को चंगा ना किया हो। Open your eyes and read your Bible and see there is not even one place where Jesus went, preached the gospel and did not heal the sick. If healing was important for Jesus, healing is important for us as a ministry. अगर यीशु के लिए चंगा करना महत्वपूर्ण था तो हमारे लिए इस सेवकाई के लिए भी महत्वपूर्ण है चंगा करना। क्योंकि ये मिनिस्ट्री किसी वेस्टर्न मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही, किसी ईस्टर्न मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही, ये मिनिस्ट्री यीशु मसीह को फॉलो कर रही है। Because this ministry is not following any Western or any Eastern ministry. This ministry is following Jesus. जब घर में सब अच्छा है ना तो तब बहुत फिलोसोफर बन सकते हैं। When everything is good in the house, everyone can be a philosopher. जब किसी का बच्चा मर रहा हो ना कैंसर से, When someone- उसको पता है कि एक चंगाई की वैल्यू क्या है जब यीशु किसी मरते हुए व्यक्ति को चंगा कर देता है। When someone's child is dying of cancer, those parents know the worth, the value of healing. When Jesus heals a dying person, they know the value of healing. आज दृष्टि के माँ बाप, उसके रिश्तेदार वो जानेंगे कि चंगाई की वैल्यू क्या है। Today, Drishti's parents, her relatives will know the value of God's healing. और क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि ये परिवार क्या अब यीशु से और प्यार नहीं करेगा? And are you telling me that this family now will not love Jesus more? अरे यीशु कथा सुनाने नहीं आया, वो प्रकट करने आया स्वर्ग के राज्य को। Jesus did not come to tell us good stories. He came to demonstrate the kingdom of God. इनफैक्ट बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं है जब यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो और उसके साथ ये ना ऐड किया हो और बीमारों को चंगा करो। In fact, not even in one place Jesus would have said, go and preach the gospel, and did not add also heal the sick. There is no commandment, just preach the gospel. Find out one verse where Jesus said preach the gospel. एक भी ऐसी आयत नहीं जहां यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, Full stop. इतना ही। हम तो केवल आत्मा बचा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए वो ज्यादा जरूरी है। Oh, we are just saving souls because that is important for God. Yeah, you're reading your own Bible. हाँ, अपनी खुद की बाइबल पढ़ रहे हो इसलिए। You're not fulfilling the commandment. Obey the commandment. You are not the master, you're a servant. The master has already given a commandment. Go and preach the gospel, heal the sick, cast out demons. Freely you have received, freely give. जो आदेश स्वामी ने दिया है उस आदेश का पालन करो। तुम आदेश का अधूरा पालन कर रहे हो। उसने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, आजादी से तुम्हें मिला है, आजादी से दो। Amen. Hallelujah. Amen. So coming back. ठीक है, पिछले हफ्ते नहीं था तो 3 घंटे पिछला, 3 घंटा आज का, Come on. और सुबह है आज तो पिछले हफ्ते आपको आदत भी थी शाम की। Hear this.
If it touches you, it touches God. अगर वो बात आपको छूती है तो वो पिता को छूती है. अगर आपका बच्चे को खांसी भी हो रही है और आपको छू रही है ना, तो पिता को छू रही है. If someone's child has cough and it is troubling you, it is troubling the father. There is never a person who came to Jesus who was sick and Jesus said, "अरे क्या है man, grow up. Why are you being such a wimpy?" एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यीशु के पास आया जो बीमार था और यीशु ने कहा, अरे क्या रोते रहता है अरे बीमारी क्या को रो लेके, रहा है, बड़ा छोटा खांसी तो है, चल अदरक की चाय पी ले. Oh, it's just a little bit cough, go drink adrak tea. No. नहीं. हम लोग सोचते हैं बड़ी और छोटी बीमारी, मगर जो उसमें है ना, केवल वो वही व्यक्ति जानता है जो सहता है. We think it's a big sickness or a small sickness, but the person suffering from it only knows what it is. Bless the Lord, O my soul, यहोवा को धन्य कहे है मेरे मन, for he has forgiven all my iniquities. He heals all my sicknesses. कि उसने मेरे सारे रोगों को क्षमा किया और मेरी सारी बीमारियों को चंगा किया है. And that is the word many believers don't believe is the word all. और यही वो वचन है जिसको बहुत सारे विश्वासी नहीं मानते. सारी बीमारियों को, सारी. I want you to go home maybe and do a Bible study on the word all. मैं चाहता हूं आप घर जाओ और ये जो सब शब्द है, all शब्द है, इस पे बाइबल अध्ययन करो. All the sicknesses. सारी बीमारी. Brother, ओ भाई, God does not heal all. ओ प्रभु सारी बीमारी नहीं Oh, करता so है. you are writing a new Bible now? अच्छा, नई बाइबल लिख रहे हो क्या आजकल? Because my Bible says क्योंकि मेरी बाइबल तो कहती He है heals. He heals. He heals. कि वो सारी बीमारियां चंगा करता है. अच्छा, Oh, is तो it? वो जो चंगे नहीं होते तो क्या फिर? What about those who don't get healed then? I don't know. मुझे नहीं पता. थोड़े से हैं ऐसे लोग जो चंगाई नहीं ग्रहण कर पाते, There are a few people who do not receive healing. मगर उन 10% को लेकर क्या मैं इतना बढ़ा दूं कि जो 90% चंगे हो रहे हैं उनके लिए हम परमेश्वर को महिमा ना दें? But because of those 10%, should I make it so huge that the 90% that are being healed would not be able to glorify God? और जैसे बढ़ते जाएंगे 10-8 होगा, 8-6 होगा, 6-5 होगा, 5-3 होगा, और वो समय भी आ रहा है इस मिनिस्ट्री में हर कोई चंगा होगा जो यहाँ पे आएगा. And as we keep growing, this percentage will keep on reducing, and everyone who will come will be healed. Amen. Hallelujah. हम चंगाई नहीं कर रहे भाई. We're not just हम talking तो about healing. चंगा करके गवाह को फिट बना रहे हैं कि गवाही देने तो जा सके वो. We are healing and making those people fit so they can go and testify. अरे बीमार लोग वॉशरूम नहीं जा सकते खुद, दुनिया के छोरों में कैसे जाओगे? Sick people cannot even go to the washroom on their own. How can they go to the ends of the earth? Amen. क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे क्या ठहरोगे? क्या जी- ठहरोगे मेरे? Jesus गवाह. said, "You will be my witnesses." सोचो आपका कोर्ट केस चल रहा है और आपका गवाह बीमार है. चाहोगे आप कभी कि जिस दिन आपकी कोर्ट की डेट है आपका गवाह बीमार हो जाए? Imagine you have a date in the court, and your witness is sick. Would you like that your witness be sick that day? Even God doesn't like his witnesses to be sick. तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके गवाह बीमार हो. अब सोचो आप कि कोई दृष्टि के पड़ोस में कह रहे अरे हम नहीं विश्वास करते ये यीशु मसीह करते हैं, और फिर पता लगे दृष्टि चंगी हुई. अब क्या बोलेंगे? So think क्या about बोलेंगे? कैसे झुटलाएंगे? 16 साल की बीमारी यीशु मसीह ने चंगी कर दी. the neighbors of Drishti who say, we don't believe in, they say Jesus heals all this stuff. We don't believe. How can they deny what God has done to this 16 year और old? सोचो ऐसी लाखों गवाहियां दिल्ली में होनी शुरू हो गई. कैसे झुटलाएगी मीडिया? क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य को सामर्थ के साथ प्रकट कर रहा है. And imagine lakhs of people in Delhi get healed like this. How will the media deny how God is healing his people? हाँ, जो आपके यहाँ लिखा है ना वही हमारे यहाँ भी लिखा है. Oh yes, whatever is written. सेम नहीं, सेम नहीं है. हमारा जिंदा खुदा है, करके दिखाता है. We say it's not the same. Our God is alive and He heals.
कथा नहीं है भाई यीशु मसीह। Jesus is no story. आमेन। तो गवाह हो आप, You are a witness. आपको गवाही देनी है मेरा यीशु जिंदा है। You have to bear witness that my Jesus is शैतान ने alive. क्यों आज इतने मसीहों को भ्रम में डाल दिया है कि चंगाई मत जाओ। कई Why? लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे देखना ये तो वहां कलीसिया जाते हैं, वहां चंगाई, वहां तो चंगाई मिलती है। Why has the devil deceived so many people that people say, oh, don't go for healing. They go to that church तो because they कहाँ want जाए? healing. पब में जाए चंगाई लेने। So where should we go for healing? To a pub? भैया जब यरूशलेम में लोगों को चंगाई चाहिए थी, कहाँ जाते थे? यीशु के पास। When in Jerusalem people wanted to be healed, where did they go? To आज Jesus. यीशु की देह है, ये लोगों को चंगाई चाहिए, कहाँ आएंगे? यीशु की देह में। Today, the body of Jesus is on the earth. If people want to be healed, where should they go? To the body of Jesus. So these self-righteous pharisaical preachers they show कि हम तो बहुत धर्मी, देखो हम तो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं। ये जो खुद अपनी नजरों में बहुत ज्यादा धर्मी फरीसी लोग हैं ना, वो दिखाते हैं, oh, we to walk after Jesus, we walk after Jesus. हमें नहीं चाहिए चंगाई। Oh, we don't want healing. तुम्हें नहीं चाहिए मगर बहुतों को चाहिए भाई। अरे तुम, you don't need it, but many people need it. यीशु ने डांट नहीं लगाई जब लोग कोढ़ी आया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये चुप कर, क्या हो गया? स्वर्ग जा बस। क्या कोढ़ से साफ होने के लिए कर रहा है? ये कोढ़ पिता ने दिया है तेरे को कुछ सिखाने के लिए। Jesus did not rebuke the sick people when they came to him. The leper came, oh son of David, have mercy on me. And Jesus did not say, shut up, God has given you this leprosy. Do you know, याद है यीशु ने पता किसको डांटा बाइबल में पढ़ना? सेल्फ राइचियस लोगों को, You know जो whom, खुद की नजर में ना बड़े धर्मी थे। you know whom Jesus rebuked in the Bible? Those self-righteous Pharisees who were very righteous in their own eyes. आज के टाइम में यीशु मसीह होता है, उसके लिए भी वीडियो बनाते हैं। If Jesus was walking around today, they would make videos about him as well. क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जाओ सुसमाचार को प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। Because Jesus said, go preach the gospel and heal the sick. क्या है यीशु मसीह? क्या बीमारों को क्यों चंगा करना है? What Jesus? Why should we heal the sick? Because it matters to God. क्योंकि परमेश्वर को फर्क पड़ता है इससे। Because salvation takes care of your spirit, your soul and your body. क्योंकि उद्धार में आपकी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों शामिल हैं। Amen. मैं फाउंडेशन डाल रहा हूं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया वर्ड को। I'm just laying the foundation. I haven't even started yet. Amen. मैं चाह रहा हूं आप श्योर हो जाओ इस बारे में। I want you to be sure about this. Because whatever God has done for you comes to you through the knowledge of the gospel. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो आता है उस सुसमाचार के ज्ञान के द्वारा। Amen. चलिए वचन में देखते हैं। ठीक है, कंफर्टेबली बैठे हो ना आप? एकदम कंफर्टेबली। जल्दी तो नहीं जाना कहीं? कोई दोस्त को टाइम तो नहीं दे रहेगा? पक्का? भूख तो नहीं लग रही? 1 घंटे बाद ये तो नहीं करोगे ना? Okay. Now hear this. सुनिए, By which, by the knowledge, have been given to us exceedingly great and precious promises. क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा हमें अति महान और कीमती वायदे दिए गए हैं। अब ध्यान धरकर सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप इंग्लैंड गए, So you went to England. इंग्लैंड की रानी ने आपको बुलाया और बोला मेरे पास कोहिनूर है, मैं कोहिनूर आपको, उदाहरण है, वो दे नहीं सकती ऐसे, बट It's just an example. उदाहरण है। आप, उन्होंने कहा कोहिनूर हीरा मैं आपको दे रही हूं, मगर ये बहुमूल्य नहीं है, ये एक्सीडिंगली ग्रेट एंड प्रेशियस है, ये बहुत बहुमूल्य है, तो ये हीरा मैं आपको दे रही हूं। So you went to England, the Queen of England called you and said, I am giving you this Kohinoor. It's not just precious, it's extremely precious. I'm giving it to you. परमेश्वर का वचन कभी भी सोना चांदी या दौलत को एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस नहीं कहता। The word of God never calls gold and silver and money as exceedingly precious. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं उनको एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस कहता है। But the promises that God has given to us in His word, the word of God calls them exceedingly precious. आप समझ सकते हो?
अगर सबसे अमीर व्यक्ति से आप मिलने जाओ जो बिलियनियर है, हाँ चलो ट्रिलियनियर लगाते हैं, ट्रिलियनियर है, So if you go to meet someone who's a trillionaire, अब हो सकता है एक कार आपको बहुत बढ़िया लगती है, बड़ी महंगी है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, वो maybe peanuts है। maybe you like the car which is very expensive for you, but for him it's peanuts. मगर जब वो आपको कुछ ऐसा दे कहे भैया ये तो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो वो सच में बहुमूल्य होगा। But when that trillionaire gives you something which is very precious for him, that must be very precious. अब सोचो, Now imagine. परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, अगर उसका वचन किसी चीज को अति बहुमूल्य कह रहा है तो वो कितनी बहुमूल्य है। Now imagine God who has created the entire creation and he is saying for his word that it is extremely, exceedingly precious. ओके, सो परमेश्वर ने हमें, अगर इनको समझ गए तो आप समझ जाओगे आप बिलियनियर हो अभी। So if you understand this, you will know you are a billionaire now. उससे नहीं कि अकाउंट में कितना है, Not from what you have in your account, उससे जो प्रतिज्ञाएं आपने पकड़ ली हैं। but from the promises you have taken hold of. अब एक बात मुझे बताओ, अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस है, यानी बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब बहुत महंगी है, जिसकी बहुत कीमत है, बहुमूल्य है। If the word of God is saying that the promises of God are very precious, exceedingly precious, Hear this, सुनिए, और आपने उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीख लिया, and you learn to take hold of those तो promises, स्वर्ग की नजर में आप बहुत अमीर हो। then in the eyes of heaven you are very rich. Because in your possession is something that is exceedingly great and precious. क्योंकि आपकी पकड़ में एक ऐसी चीज आ चुकी है जो बहुमूल्य है और बड़ी ही ज्यादा कीमती है। That was amazing. बहुत ही अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा कहा। सांस ले रहे हो आप लोग? Are you guys breathing? रैप्चर तो नहीं हो गया हमें? जिंदा हो आप? Are you alive? Oh hallelujah, praise God, amen, amen, amen. अभी सो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वो कोहिनूर का हीरा कहाँ का था? कहाँ का था? अरे इंडिया का था भाई, था इंडिया का, That Kohinoor मगर belonged आज to- किसके पोजीशन में, किसके कब्जे में है? तो अब किसका है वो? था किसका मगर पहले? That Kohinoor belonged to India. Today it's in possession of England. प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं, बट व्हेन यू पोजेस दोज प्रॉमिसेस दे बिलोंग टू यू एंड योर जनरेशंस। God has given those promises, लेकिन जब आप उस पर कब्जा कर लेते हो तो फिर वो प्रतिज्ञाएं आपकी और आपकी पीढ़ियों की हो जाती हैं। ओके, सो आई वांट यू टू इमेजिन यू आर होल्डिंग समथिंग प्रेशियस। मैं चाहता हूं आप ये कल्पना करो, आपने कुछ बड़ा ही ये कीमती कोहिनूर है आपके पास, You have this Kohinoor. तो आप ऐसा पॉलिथीन में लपेट के जाओगे, ला 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 मार्केट, So will you carry it around in a polythene? ऐसे बेगुस, Throw it around like this? या आप उसको संभाल के रखोगे? Or will you hold it precious? हाँ, संभाल के रखोगे। You will keep it with you. व्हाट इफ carefully. अगर कोई व्यक्ति आके बोले अरे नहीं नहीं ये बेकार है, नकली है, What if someone comes to you, oh, this is fake? क्या करोगे आप? What will you do? विल यू जस्ट लेट इट गो? छोड़ दोगे? I want to teach you something powerful today. मैं कुछ शक्तिशाली सिखाना चाहता हूँ आज। That is what devil tries to do. शैतान यही करने He की कोशिश wants you करता है। to doubt God's promises. शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वायदों पर शक करो, Because he wants you to doubt God's integrity. क्योंकि वो चाहता है आप परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी पर शक करो। अगर एक व्यक्ति ने आपको वादा किया, बोला मंडे को भाई साहब आ जाना, 10,000 रुपए ले जाना मुझसे, और If- आप गए और वो कहे मैंने कब कहा भाई, मैंने तो कहा ही नहीं। If a man promises you, come to me on Monday and I'll give you 10,000 rupees, and you go on Monday and he says, what? I never said it. क्या आप फिर कभी भरोसा कर पाओगे उस व्यक्ति पे? Will you ever be able to trust that person again? Because a person's integrity backs his promises. क्योंकि एक व्यक्ति की ईमानदारी उसके वायदों को संभालती है। अगर परमेश्वर वादा करके मुकर जाए तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा। If God promises and then switches from his promise, he will not remain God anymore. Oh, come on. Amen? Come on. क्या करता है शैतान? आपके आके कान में बोलेगा The devil comes to you and says in your ear, that is not for you. ये तुम्हारे लिए नहीं है.
ये तो पुराने नियम में होता था, This used to happen in the ये Old तुम्हारे Testament. साथ नहीं होगा। This will not happen to you. अरे तू 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 कैसा जीवन जीती तेरे को पता नहीं है? Arey, you don't know what kind of life you ये live. तो केवल उन लोगों के लिए है जो 40 दिन उपवास करते हैं, This is only for those who fast 40 days. एक महीने में 3 बार। They fast 40 days thrice in 1 month. और जो प्रार्थना करते हैं 30 घंटे एक दिन में। And those who pray 30 hours every day. प्रॉमिस अगर किसी व्यक्ति ने आपको करा है, उस प्रॉमिस का मतलब ही ये है कि वो पहले से माना हुआ है, अब मनाने की जरूरत नहीं है। If someone has already promised you something, that means they already agree to do it for you. You don't have to convince. सोचो किसी ने आपको फोन करके बोला कि एक काम करते हैं, मंडे को 5 बजे मेरा बहुत मन कर रहा है, आपको कॉफी पे मिलते हैं, ठीक है? 5 बजे। Someone calls you and says, I want to meet you on a coffee on Monday at 5 p.m. I really want to meet you. I'll be there, I promise। मैं वहाँ होऊंगा पक्का 5 बजे। at अब आप 5. उसको कह रहे हो, Now you say, प्लीज oh please, प्लीज कृपया करके कम टू मीट मी टू हैव अ कॉफी, कृपया करके मुझसे मिलने आ जाएं कॉफी पे। प्लीज। कृपया करें। व्हाट शुड आई डू मैं क्या करूं दैट यू विल कम टू मीट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी? कि आप मुझसे कॉफी पे मिलने के व्यक्ति लिए कहेगा आओ। बेवकूफ, He will say, fool, मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर तो दी कि 5 बजे मिल रहा हूं तुझे मंडे को, बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? haven't I already told you I'm meeting you on Monday at 5? Why are you bothering me again and again? God cannot say no to a promise he has already said yes to. जिस बात के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से हाँ बोल दिया है पहले से, उसके लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकता है। तो क्यों मना रहे हो भैया? Why are you trying to convince him then? बीच बीच में सांस लेते रहिए। Keep on breathing in the middle. Some people say कुछ लोग कहते हैं because you are not living perfect, God will not do it for you. क्योंकि आप सिद्ध जीवन नहीं जी रहे हो, इसलिए परमेश्वर नहीं करेगा आपके लिए। You are not worthy for that. तुम लायक नहीं हो इसके, You are not worthy for that. तुम लायक नहीं हो इसके। मैं आपको एक परमेश्वर के दास हैं, मैं उनकी गवाही आपको बताता हूँ। केनेथी हेगिन, A man of God, Kennedy Hagin, I want to share his जब वो story. 17 साल के थे, उनके दिल में बहुत बड़ा छेद था और वो मरे और मर के उनका जो आत्मा है वो नरक की तरफ जा रहा है। When he was 17 years old, he had a big hole in his heart. He died and his spirit was descending into और hell. उनकी मम्मी उनके बगल में प्रार्थना कर रही थी घुटने टेक। And his mom was praying on her knees next to him. और फिर वो देखते हैं कि उनकी आत्मा वापस नरक से कोई खींच के वापस ले आया, And then फिर वो he's- अपने शरीर में आए And और then उन्होंने he प्रभु saw, को ग्रहण किया। then he saw someone pulled his spirit back from hell. He came back into his body and he received the Lord Jesus. ध्यान से सुनना, Hear कई लोग carefully. बुरा मानेंगे जो मैं कहने वाला हूँ, Some people will mind what I'm going to say, मैं कहना जरूरी है। but it's important that I say it. 17 साल तक वो क्रिश्चियन थे। Till 17 years, he was a Christian. उस दिन फिर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। But that day, he received the Lord. नाम केनेथ था, क्रिश्चियन नाम था। Name was Kenneth, a Christian name. उनको लगा मैं तो प्रभु में हूँ। He thought, I belong to the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Jesus said, until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. सो खैर एनीवे, तो मार्क 11:24 उनको मिला So he found Mark 11:24, और उनके द्वारा उन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। and through that he received his healing. अब वो चंगे हो गए Now he was healed. और एक दिन वो अपने कमरे में बैठे थे One day he was sitting in his और room उनको एक आवाज अपने कानों में गूंजी उनकी, and he heard a voice in his ears. और वो जेम्स 4:14 बोला उस आवाज ने। क्या बोला? अब हमें लगता है कि अगर कोई आयत मेरे कान में बोले तो ये तो परमेश्वर ही बोलेगा। And that voice said, James 4:14, Yakub 4:14, and we think if any voice will speak a word in our ears, that must be God. इसीलिए ध्यान से बाइबल पढ़ो। This is why read the Bible carefully. शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो बाइबल की आयत लेकर आया। When the devil came to Jesus, he brought the verses of the Bible. शैतान ने कुछ आयतें लेकर कुछ मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है क्योंकि उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है। Devil has used some verses and corrupted the brains of some Can you believers put James 4:14? because they have no revelation of God's word. और इसमें लिखा था
कि हम नहीं जानते कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाएगी। And it says, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. फिर उसके बाद उस आवाज ने इब्रानी 9:27 बोला कि हर किसी के लिए नियुक्त किया गया है पैदा होना और मरना, और आज तेरा दिन है जब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। And then that voice again spoke, Hebrews 9:27, and says that it is ordained for every man to be born once and then die. Today is your day to die. और उन्हें लगा ये परमेश्वर है जो मुझसे बात करता है। उन्होंने कहा प्रभु मैं तैयार हूँ, ले जा मुझे। And he thought it is God speaking to him. So he said, Lord, I'm ready, take me. और जब वो ऐसा कह रहे थे, While he was just saying this, अंदर से उनके एक धीमी सी आवाज, from within him a still small voice और उस आवाज ने कहा, whispered to him, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I will satisfy you with a long life and show you my salvation. सो अब क्या हो रहा है? दो आवाजें आ रही हैं उनको। Now there are two voices that he's hearing. One, Satan is messing him up पहला with scriptures. जो शैतान वचन का इस्तेमाल करके उनको परेशान कर रहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है लेटर्स प्रोड्यूसेस डेथ। अगर केवल आयत ले लोगे और उसके अंदर उस आत्मा को नहीं समझोगे तो उसी आयत को लेकर शैतान मृत्यु लाने की कोशिश करेगा। Bible says जो लिखित वचन है वो मारता है. If you just take the letters but don't take the spirit behind it, the devil will use those letters to kill you. फिर से उस आवाज ने वही बोला, तेरा जीवन है ही क्या, आज तुझे तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Again that voice spoke to him and said, what is your life? Today your soul will be taken from you. फिर धीमी आवाज अंदर से But again the still small उठ voice के आई, whispered, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I will satisfy you with a long life and show you my salvation. फिर तीसरी बारी आवाज आई, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? Then the third time he heard उन्होंने the बाइबल voice, में नहीं पढ़ा था ये। and he said, Lord, what is this? और उनका आवाज आई, भजन संहिता 91 पढ़। And he heard to read Psalm 91. और उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा। When he read Psalm 91, जब उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा तो फिर से आवाज आई बाहर से, ये यहूदियों के लिए लिखा था, तेरे लिए नहीं लिखा। he heard a voice from outside, this was written for the Jews, this is not for you. आपको परमेश्वर की विल, आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में किसी प्रचारक को सुना, उसने जो बोला नहीं है, गरीबी आपके लिए, कंगाली आपके लिए, वो मान लिया। अरे खुद वचन खुद तो पढ़ो, ढूंढो तो सही, देखो तो सही परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं आपके लिए करी हैं। Today what people do is they hear some random preacher on YouTube and that preacher is saying sickness is for you, poverty is for you, and they believe that. At least read the Bible, see what the word says for you. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, फिर से वो आवाज है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। Again that voice said, I will satisfy you with a long life. और फिर आवाज आई, आज तू मर जाएगा। And then he heard that voice that you will die today. अब मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। Now okay? I'm reading out Are you what ready? he has written in his book. And he stood up and declared out loud, और उन्होंने उठकर जोर से घोषणा की, Devil, शैतान, I am not going to die today. मैं आज नहीं मरूंगा, I'm not going to die tomorrow. मैं कल नहीं मरूंगा, I'm not going to die next week. मैं अगले हफ्ते नहीं I'm मरूंगा, not going to die next year. अगले साल I नहीं am not मरूंगा, going to die in 5 years. 5 साल बाद I'm नहीं not going to मरूंगा, die in 10 years. 10 साल बाद I'm नहीं not going to मरूंगा, die in 20 years. 20 साल बाद I'm नहीं not going to मरूंगा, die in 30, 40 or 50 years. 30, 40, 50 साल बाद I नहीं will मरूंगा, be satisfied with a long life. मैं दीर्घ आयु से संतुष्ट किया जाऊंगा। And और it came to pass, this man of God, ऐसा हुआ कि ये परमेश्वर के जन, whom devil would have killed at 17, lived a good old age and destroyed the kingdom of darkness. ये जवान व्यक्ति जो 17 वर्ष के थे, जब शैतान को मारना चाहता था, उन्होंने एक अच्छी भली बूढ़ी उम्र का जीवन जिया और शैतान के राज्य को नाश किया। आज ये वचन जो बीज की तरह आपके अंदर जा रहा है ना, ये दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा और हर एक मृत्यु का असाइनमेंट जो आपके परिवार के विरोध में शैतान ने रखा है, वो असाइनमेंट आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में।
Today, this seed will go into your heart and will come out like a two-edged sword out of your mouth. Every assignment of death the devil has prepared against you is being destroyed today in Jesus' name. Amen. Let me declare this over you. मैं ये घोषणा You are करता not हूँ। gonna die today. आप You आज are not नहीं dying मरोगे। tomorrow. आप You कल are नहीं not मरोगे। dying this year. इस You साल are नहीं not मरोगे। dying next year. अगले You are साल not नहीं dying in मरोगे। 10 years. 10 You are साल not में नहीं dying in मरोगे। 20 years. 20 You are साल not में dying नहीं in 30 मरोगे। years. 30 You are साल में not नहीं dying in मरोगे। 50 years. 50 साल में You नहीं मरोगे। shall live a long life in Jesus' name. आप एक लंबी आयु जियोगे यीशु के नाम में। Hallelujah. Amen. और एज का नहीं है। प्रभु कहता है I'll satisfy। जब satisfy हो जाए 80 जी लिया आपका प्रभु अब मुझे घर आना है तो बर्थडे लगाना अपना केक उसमें कैंडल लगाना कहना प्रभु तेरा धन्यवाद और शैतान को कहना आया मजा। It's not about age. When you are satisfied with your age, so celebrate your 80th birthday and tell the devil, did you enjoy that? ओके वचन शुरू हो रहा है अभी ठीक है The word is starting now. फाउंडेशन है This is the foundation. हालेलुया। This year इस साल let there be no funerals in Jesus name. कोई भी funerals ना हो यीशु के नाम में। This year इस साल let there be no funerals in Jesus name. कोई भी funerals ना हो यीशु के नाम में। Hallelujah. Now some people will say that was his testimony, why should we follow him? कुछ लोग कहेंगे ये तो उनकी गवाही है हम क्यों माने? Because Bible tells us to follow such people. क्योंकि बाइबल हमें कहती है ऐसे लोगों का अनुकरण करो। Put Hebrews 6:12. Hebrews 6:12. इब्रानी 6:12। Okay. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मसीह की देह में एक चीज जो बढ़िया है आप अच्छा है मगर एक और बदलाव आना जरूरी है। One thing that is good in the body of Christ, but one more change is needed. हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग हर बार क्या कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो pray for me pray for me. Every time we say, "Oh, मेरे लिए प्रार्थना कर दो." When मेरे you लिए see a प्रार्थना man कर of God दो। जब आप परमेश्वर के किसी जन who को has देखते हो possessed a promise, जिसने किसी वायदे पे कब्जा किया है, rather than saying pray for me, you should say teach me. ये कहने की जगह कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये कहो मुझे सिखाओ। Teach me how were you able to possess this promise? Teach me because I want to imitate your example. मुझे सिखाओ कैसे आपने इस वायदे पे कब्जा किया क्योंकि मैं आपके उस उदाहरण की नकल करना चाहता हूँ। क्यों बाइबल आपको कह रही है कि उनकी नकल करो जिन्होंने पेशेंस के साथ और विश्वास से प्रतिज्ञा को पकड़ लिया? क्यों? क्योंकि जब आप उनका अनुकरण करोगे तो आप भी प्रतिज्ञा को पकड़ लोगे यीशु के नाम में। Why is the Bible telling you to imitate those who have by faith and patience obtained the promise? Because if you imitate them, you will also obtain the promise. What do we say? Pray for me, pastor. हम कहते हैं पास्टर प्रार्थना कर दो। Pray for me. मैं बहुत कर्जों में हूँ। ओ मेरे लिए तो प्रार्थना मैं करो। कहूँगा मैं भी तो था तो वही करो जो मैंने करा। I'll tell them I was also under debts. Do what I did. वही करो। Do that. You'll have the same result. आपको भी वही परिणाम मिलेगा। Amen. You need to catch hold of the promises of God. आपको परमेश्वर के वादों को थाम लेना सीखना है। वो जो परिवार मैंने आपको बताया जो 3 दिन भूखा रहा जहाज में, वो क्यों भूखे थे? इसलिए नहीं कि सेलर ने उनको खाना नहीं दिया, इसलिए कि उन्हें ज्ञान नहीं था कि उनके टिकट में पहले से ही खाना इंक्लूडेड था। The family that was on that ship did not eat for 3 days, not because the sailor did not give them food, but because they did not have the knowledge that the food was included in their ticket. तो आपको आज जानना है So you have ये to- जो उद्धार हमें मिला है ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है भैया। So you have to know today the salvation you have received is not just going to heaven. ये ऐसा ही जैसे वो थे कि टिकट बैठ गए जहाज में, अब जाना है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका तो पहुंचा देगा जहाज, मगर जो जर्नी है ना वो बिल्कुल खराब जर्नी है।
ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर कि भैया स्वर्ग तो पहुंचोगे मगर यहाँ पे बिल्कुल खत्म जीवन जीना. So now they have bought the ticket to go to South Africa. So they will reach the destiny, South Africa, but all the journey will be so terrible. This is not what God is saying. This is not what God wants, that you will go to heaven, that the journey, the life here will be terrible. The Bible says, Come on. what does it say? It says many things, but right now what I'm saying is the path of the righteous shines brighter and brighter and brighter. That means your tomorrow is going to be better than your yesterday in Jesus name. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाशमान और प्रकाशमान और प्रकाशमान होता चला जाता है. इसका मतलब आपका कल आपके आज के दिन से बेहतर होगा यीशु के नाम में. Amen. That means now you are not going down, you shall go up, up and up in Jesus name. इसका मतलब अब आप नीचे नहीं जा रहे हो, आप जीवन में ऊंचा 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 उठते जाओगे यीशु के नाम में. Hallelujah. I declare no arrow of the enemy shall hit you and your family in Jesus name. मैं घोषणा करता हूँ दुश्मन का एक भी तीर आपके और आपके परिवार को छूने भी नहीं पाएगा यीशु के नाम में. As your days are, so shall your strength be. जैसे आपके दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका बल भी बढ़ता चला जाएगा यीशु के नाम में. Amen. लोग क्या कहते हैं अब उम्र बढ़ रही है तो बल घटेगा. People say now age is increasing so strength will go down. ये लोग कह रहे हैं. This is what people वचन say. क्या कह रहे हैं? What is the word say? जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है तेरा बल भी बढ़ता जाएगा. As your days are increasing, your strength will keep on increasing as That well. means tomorrow you're gonna be more stronger than yesterday in Jesus name. इसका मतलब कल आप ज्यादा बलशाली हो गया पिछले दिन से. Hallelujah. We are in a different kingdom. हम एक अलग राज्य में हैं. We are in a different economy. एक अलग इकोनॉमी में हैं. Are you getting what I'm saying? This is an upside down kingdom. ये ऊपर से चलने वाला उल्टा राज्य है. Hallelujah. अगर यहोवा का वचन में उसकी बाट जोते रहोगे तो उकाबों की नाई आपकी जवानी वो. If you will keep on waiting on the Lord through His word, He will keep on renewing your youth like the eagles. Amen. कल मैं 40 का हो जाऊंगा. I'll be 40 tomorrow. मगर जब 80 का होऊंगा तब और ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा. But when I'll be 80, I'll be more strong. And so shall it be with you and your family in Jesus name. और आपके परिवार के साथ भी ऐसा ही होगा यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. परमेश्वर मूसा का रिश्तेदार थोड़ा है. God is not Moses' relative. मूसा तो पुराने नियम में नौकर था, हम तो बेटे और बेटियां हैं. Moses was a servant in the Old Testament. We are sons and daughters of God. Hallelujah. और बाइबल कहती है 120 का था, उसकी आंखें डिम नहीं थी. Bible says he was 120 years old. His eyes were not dim. और पहाड़ पे चढ़ के गए भाई साहब. He climbed the mountain. लोग क्या कहते हैं अगर आप बीमार नहीं होगे तो फिर मरेगा कैसे कोई. मूसा कैसे मरा? बीमार था. So people say if someone is not sick, how will they die? Was Moses sick? अरे उम्र पूरी करो यहाँ पे बढ़िया. Fulfill your life here completely. Your days. Live a victorious life here. एक जैवन जिंदगी और जियो फिर यहाँ अनंत पे. में तो विक्ट्री में आप प्रवेश कर ही रहे हो. And then in eternity you are entering into victory anyways. Hallelujah. चाहिए प्लीज. मैं आपको एक बात बता दूं. God will never force His blessing upon anyone. परमेश्वर अपनी आशीष किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपेगा. He will never. कभी नहीं करेगा ऐसा. Even though God's promises are God's will. हालांकि परमेश्वर के वायदे उसकी इच्छा हैं. एक प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है इसका मतलब उसकी प्रतिज्ञा प्रकट करती है कि उसकी इच्छा क्या है. What does a promise mean? A promise shows what is the promiser wanting to do. लोग कहते हैं अच्छा
ये क्या सिखा रहे हैं, दीर्घायु जियोगे। Oh, this, what are they teaching? Long life. बाइबल सिखा रही है, मैं थोड़ा ना सिखा रहा हूँ। The Bible teaches that, not me. There are more than 100 promises. कितनी? अगर कोई आपको चिट्ठी लिखी और उसमें 100 बारी एक बात लिखे, इसका मतलब वो चाहता है कि समझ जाओ भाई मैं क्या कह रहा हूँ। If someone writes a letter to you and writes one thing 100 times, then you should understand what they want for you. God wrote in His Word 100 times that He wants to bless you with a long life. परमेश्वर ने अपने वचन में 100 से ज्यादा बार लिखा है कि वो आपको एक लंबी जिंदगी से ब्लेस करना चाहता है। Okay, and hear this. Long life is not achieved. It's received by faith. एक लंबी जिंदगी हासिल नहीं की जाती, ग्रहण की जाती है विश्वास से। Amen. यानी परमेश्वर नहीं कह रहा कि हिमालय में चढ़ के आपको एक जड़ी बूटी लानी है God is not saying you have to climb up the और जब Himalayas and अमावस्या get की some रात rocks. होती है तब गिलहरी की पूंछ के साथ उस जड़ी बूटी को मिलाना है और तब जब आप सुबह 3 बजे उठकर दूध के साथ उसको पियोगे तब आपको दीर्घायु मिलेगी। नहीं 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 नहीं। Do you want to interpret? No, sir. इतना स्किल नहीं है सर। Okay. Longevity is a blessing. दीर्घ आयु एक आशीष है। Longevity is a covenantal inheritance. दीर्घ आयु एक वाचा के द्वारा पाई जाने वाली विरासत है। God calls death His enemy. परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन कहते हैं। हाँ? God calls death His enemy. परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन कहते हैं। You have to hate death. हमें मृत्यु से नफरत करना सीखना है। God hates death. परमेश्वर मृत्यु से नफरत That's करता why है। He died to abolish death. इसीलिए वो मरा कि वो मृत्यु को नाश कर पाए। अभी आत्मिक मृत्यु से हम लोग रिडीम हो चुके हैं। समय आ रहा है, बाइबल कहती है जब अविनाशी शरीर नाशवान शरीर को निगल लेगा तब हम लोग शारीरिक मृत्यु से भी पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। We have been redeemed from spiritual death, but the time is coming when the imperishable will swallow that which is perishable, that our bodies will be redeemed from death. मगर तब तक But till जब then, तक वो ना हो समय से पहले नहीं जाना। until that happens, don't go before your time. पूरे करो दिन। Fulfill your एक days. ही जिंदगी है भाई, We have one life. उस काम को तो पूरा करो जिसके लिए भेजा गया है। Fulfill the work for which you have been sent. नीले आसमां के पार जाएंगे और चले गए और यीशु ने कहा क्या किया तूने? कुछ नहीं, हमें नीले आसमां के पार आना था। So you were waiting to go beyond the blue skies and you meet Jesus and he says, what did you do? You said, nothing, I just wanted to get beyond the blue skies. अरे वहां तो जाना ही है पर काम करके जाना। लाखों भाई बहनों को लेकर जाएंगे अपने साथ नीले आसमां के पार। Yes, we will go there, but do a lot of work here. We have to take lakhs of brothers and sisters with us. Amen.